مجھے ایک پوش علاقے سے اے سی خراب ہونے کی کمپلین آئی تھی۔ میرے پاس ایڈریس ٹیکسٹ میسج میں آ چکا تھا۔ میں اپنے مطلوبہ پتے پر اے سی ٹھیک کرنے پہنچ گیا۔ میں سعودیہ کی جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں کا مالک ہمیں خود بتاتا تھا اور ہم اسی پر کام کرتے تھے اور اس کے پیسے بھی ہمارے مالک کے اکاؤنٹ میں آتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ کوئی شخص ہمیں خوشی سے چند ریال دے دیتا تو ہم بھی خوشی سے رکھ لیتے۔ میں نے گھر کی ڈور بیل دی تو ایک بچہ گھر سے باہر نکلا۔ میں اپنی واضح سے وہ پاکستانی لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، جی فرمائیے کیا کام ہے؟ میں نے آپ کا اے سی ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس بچے سے کہا اور یہ کہا کہ وہ اپنے والد کو بلائے۔ وہ بچہ اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شخص باہر آ گیا جس نے اے سی خراب ہونے کی کمپلین کی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے پہلے تو حیرانی سی ہوئی تھی کیونکہ وہ شخص عربی تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایسا بھی کئی بار ہوتا ہے کہ پاکستانی لڑکی کی شادی عربی سے ہو جائے، کیونکہ وہ بچہ اردو بھی صاف بول رہا تھا اور شکل و صورت سے بھی عربی نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس عربی کے ہمراہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا جہاں کا اے سی خراب تھا۔ میں وہ اے سی ٹھیک کرنے لگا۔ 1 گھنٹے تک میں اس کا اے سی ٹھیک کر چکا تھا۔ میں نے جانے کی اجازت مانگی تو وہ عربی کہنے لگا کہ چائے پی کر جانا۔ وہ شخص بہت خوش اخلاق قسم کا شخص تھا، مزاج کا بھی اچھا تھا، ورنہ ہم ملازم پیشہ لوگوں کو کون پوچھتا ہے۔ میں اپنی جیب سے رومال نکال کر پسینہ پونچھنے لگا تھا جب اس شخص کی بیوی چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ تو زرینہ تھی، میری بیوی زرینہ۔ میرا سر بری طرح سے چکرا سا گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ زندہ تھی؟ میں سب کچھ بلائے بے اختیار اور بے یقینی کی کیفیت میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا، زرینہ تم یہاں کیسے؟ اتنی دیر میں وہ عربی میں میرے پاس پہنچ گیا۔ کہنے لگا کہ کیا بدتمیزی ہے، میری بیوی کے پاس سے پیچھے ہٹو۔ وہ زرینہ ہی تھی، وہ اس کی بیوی کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ عربی اسے آمنہ کہہ کر پکار رہا تھا۔ کہنے لگا، آمنہ تم اندر جاؤ۔ میں نے کہا، یہ میری بیوی ہے، تم کیسے کسی کی بیوی سے شادی کر سکتے ہو؟ میری بات پر اس شخص نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا، خبردار جو میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو وہ صرف میری ہے۔ زرینہ گھبرائی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے اس عربی سے غصے سے کہا، تم نے میری بیوی کو اغوا کیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس شخص نے مجھے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میرا سر بری طرح سے چکرایا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، میری زرینہ تھی۔ میری آنکھیں اسے دیکھ کر دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ وہ کیسے اس شخص سے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے شادی کر سکتی ہے؟ یہ بات ناممکن سی تھی۔ میں مرے مرے قدموں سے مین روڈ تک پہنچا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میری آنکھیں آنسو بہانے پر مجبور تھیں۔ 8 سال پہلے وہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں آئی تھی۔ وہ رات میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ رات میری زندگی کی سب سے زیادہ حسین رات تھی۔ زرینہ کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جو حسن کی دولت سے مالا مال ہوں۔ میں ایک اے سی اور موٹر مکینک تھا۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ زرینہ بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ جب میرا اس سے رشتہ طے ہوا تو اس وقت میں نے زرینہ کو دیکھا نہیں تھا، بس یہ پتا تھا کہ لڑکی اس قدر غریب ہے کہ والد شادی کے ایک جوڑے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ میری والدہ اس بات پر خوش تو نہیں تھی کہ لڑکی کو بنا جہیز کے لایا جائے، لیکن کہنے لگیں، لڑکی خوبصورت بہت ہے، اس لیے مجھ سے انکار نہیں ہوا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا تھا کہ چلو بیوی پیاری ہے، لیکن جب شادی کی رات میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، میرے ہوش اس کی خوش ربا حسن کو دیکھ کر اڑ گئے تھے۔ کچھ پل تو میں اپنی آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری اپنی بیوی کے لیے محبت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی تھی، لیکن یہ بات شاید میری والدہ سے برداشت نہیں تھی۔ جب میں کام سے واپس آتا، میری خواہش ہوتی باقی کا وقت بیوی کے ساتھ گزاروں، لیکن اماں مجھے رات دیر تک اپنے پاس بٹھائی رکھتی، کہتی، تم شادی کے بعد ہم بڈھا بڈھی کو بھول گئے ہو۔ میں کہتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے ابا بیمار رہتے تھے، اس لیے رات کو ان کے پاؤں میں دبا کر ہی سوتا تھا، لیکن میری والدہ نہ جانے کیوں رات دیر تک مجھے باتوں میں الجھائے رکھتی۔ جب تک میں اپنے کمرے میں جاتا تو زرینہ غصے کے مارے سو چکی ہوتی۔ صبح ہوتے ہی مجھے کام پر جانے کی جلدی ہوتی تھی۔ جس کمپنی کے لیے میں اے سی ٹھیک کرتا تھا، ان کو میرا کام بہت پسند آنے لگا۔ ایک بار کمپنی کے مالک نے مجھ سے کہا، اس کا ایک بھائی سعودیہ میں بھی یہی کام کرتا ہے، اگر تم وہاں چلے جاؤ تو تمہاری کمائی دگنی ہو جائے گی۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ جب یہ خبر میں نے اپنے گھر پر سنائی تو اماں ابا خوش ہو گئے، لیکن زرینہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔
मैंने कहा, मुझे एक बार वहां अपनी नौकरी पक्की लगवाने दो तो मैं तुम्हें भी बुला लूंगा। मेरी बात सुनकर कहने लगी कि तुम मेरे साथ बहाने कर रहे हो, तुम वहां जाकर मुझे भूल जाओगे और यहाँ तुम्हारी अम्मा मेरा जीना दो बार करके रख देगी। पूरा दिन वो मुझे एक मिनट भी सुकून से गुजारने नहीं देती, काम ही करवाती रहती हैं। तुम होते हो तो मेरी रात सुकून से गुजर जाती है, वरना इनका बस चले तो रात भर भी मुझसे काम ही करवाया करें। जरीना की बात भी एक हद तक सच थी। मेरी वालदा सख्त मिजाज औरत थी। इन्हें ये देखकर खुशी नहीं होती थी कि बेटा और बहू साथ खुशबाश हैं। इनकी सोच भी पुरानी खवातीन की तरह थी कि बहू को गुलाम बनाकर रखा जाए और बेटे को अपने काबू में रखा जाए ताकि वो बीवी की बात ना मान दे। मैं सब जानता था और ये भी चाहता कि सऊदीया में अपने पैर जमाते ही जरीना को अपने पास बुला लूंगा। मैंने रोती हुई अपनी दिल अजीज बीवी को अपने हिसार में लेकर कहा, तुम्हें क्या पता तुम्हारे बगैर मैं वहां कैसे वक्त गुजारूंगा। मुझे पता है अम्मी पुराने ख्यालात की सहत की खतून है, लेकिन मेरी खातिर तुम बस चंद माह सब्र कर लो, मैं तुम्हें जरूर वहां बुला लूंगा। दिल तो मेरा भी बेहद उदास था। जाने से पहले मैं जरीना को जेब खर्च के पैसे देकर गया था, क्योंकि मैं जानता था मैं सऊदीया से जो पैसा पाकिस्तान भेजूंगा अम्मी कभी भी इन पैसों में से जरीना को कुछ नहीं देंगी। जरीना ने मुझे आंसू के साथ रुखसत किया था, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं इससे करता था इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत इसने मुझसे की थी। मैं फुटपाथ पर बैठा आंसू बहा रहा था। जरीना मेरे साथ एक कैसे बेवफाई कर सकती है, वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं तो अब तक यही समझता आया था कि मेरी बीवी मर चुकी है। मैंने खुद इसकी मुर्दा वजूद को जला हुआ देखा था। मुझे याद आने लगा कि मुझे सऊदीया में काम करते हुए अभी एक माह ही हुआ था तो जरीना का रोते हुए मुझे फोन आया था। कहने लगी, तुम्हारी अम्मा ने मेरा जीना दो बार कर रखा है, अब तो वो मुझे पेट भर कर खाने को भी नहीं देती, मुझे मैके भी रहने नहीं देती, आधी आधी रात तक अपने पैर दबवाती रहती हैं। मुझे अपने पास बुला लो वरना मैं जहर खा लूंगी। ये सुनकर तो मैं हौस बाख्ता होकर रह गया था। मैंने कहा, तुम ऐसा जुल्म मत करना, खुदा के लिए जरीना मेरे हालात को भी समझने की कोशिश करो। अभी मुझे बस एक माह हुआ है यहाँ आए हुए। अगर अभी से मैंने मालिक से ये कहा कि मुझे अपनी फैमिली को यहाँ बुलाना है तो वो मुझे भी नौकरी से फारिग कर देगा। और तुम तो जानती हो कि मैं दोस्तों से कर्जा लेकर यहाँ आया हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मा से कहता हूँ कि तुम्हें कुछ दिन के लिए मैके भेज दे। मैं तुम्हें तुम्हारे मैके के पते पर पैसे भी भेज दूंगा, तुम अपने लिए कपड़े खरीद लेना। वो मेरी बात सुनकर चुप हो गई। इसने मुझे फोन भी चुप कर किया था, वरना मेरी माँ मेरी बात तक जरीना से नहीं करवाती थी। फोन वो अपने कमरे में रखती थी। मैं जब भी इनसे फोन पर बात करने के बाद इनसे कहता कि मेरी जरीना से बात करवा दे तो कहती, कैसे बेशर्मों की तरह तुम मुझसे बीवी से बात करने का कह रहे हो। कोई जरूरत नहीं है रोज रोज बीवी से बात करने की। अगर तुम यूं इससे बात करोगे तो क्या हाक काम में दिल लगाओगे। अम्मा मुझे एक की 10 सुनाकर फोन रख देती थी। रात को मैंने अम्मा को फोन करके कहा कि वो जरीना को कुछ दिन इसके मैके भिजवा दें। मेरी माँ कहने लगी, क्यों तुम्हारी बीवी को ससुराल में कांटे चुभते हैं। मैंने कहा, वो कब से नहीं गई, चंद दिन इसे वहां रह लेने दे, वह मुश्किल ही सही। लेकिन मैंने अपनी वालदा को इस बात पर राजी कर दिया था। फिर मैंने जरीना के मेके के पते पर पैसे भी भिजवा दिए। वहां मेरी जरीना से बात भी रोज हो जाती थी। वो कहने लगी कि तुम्हारी अम्मा अब मुझ पर हाथ भी उठाने लगी हैं। फाइक, आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझे अपनी वालदा के रवैये पर बहुत दुख और अफसोस होता था, लेकिन मेरी काम तनहा अभी इतनी इजाजत नहीं देती थी कि मैं इसको सऊदीया बुला सकूं। एक बार मैं इसी परेशानी में किसी गहरी सोच में बैठा था कि जब मेरे मालिक ने मुझे देखकर वजह पूछ ली। मैंने कहा, घर वाली वहां परेशान है। मैं इस वक्त अपने बटुए में रखी जरीना की तस्वीर ही देख रहा था। मेरा मालिक कहने लगा, तो इसे भी यहीं बुला लो। मैंने कहा, मेरी जेब अभी इस बात की इजाजत नहीं देती, मुझ पर अभी कर्जा भी है। फिर यहाँ अकेला मर्द कहीं भी रहकर गुजारा कर सकता है, लेकिन बीवी के लिए तो अलग घर और रहना चाहिए, जो मैं इस वक्त पूरे करने से कासिर हूँ। मेरा मालिक कहने लगा, तुम मुझसे कर्जा ले लो, अपनी तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा कटवाते रहना। रिहाइश के लिए मुझे ऐसे घर मालूम है जो एक कमरे पर मुश्तमिल है, किराया भी कम है, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। ये सुनकर तो मैं खुश हो गया था। मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो चुका था। ये बात जब मैंने अपनी वालदा से कही कि मैं जरीना को अपने पास बुलाना चाहता हूँ तो वो कहने लगी, इसकी जरूरत नहीं है, वो यही हमारे पास रहेगी। मैंने कहा, मेरा यहाँ अपनी बीवी के बिना गुजारा नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ बुला रहा हूँ। मेरे दो टोक अंदाज पर मेरी वालदा मुझ पर बफरने लगी, लेकिन फोन मेरे वालद ने पकड़ लिया। कहने लगे, वो जरीना को खुद एयरपोर्ट छोड़ आएंगे, तुम फिक्र मत करो। मैं कुछ पुरसुकून हो गया था। मैं अपने मालिक से जब कहा कि मैं अपनी बीवी को बुलाना चाहता हूँ,
इन्होंने वीजा और टिकट का इंतजाम भी कर दिया। मैंने वो सब जरीना को भिजवा दिया। जरीना की फ्लाइट दुबई से होते हुए सऊदीया आनी थी। जब मैं वक्त मुकर्रर पर वहां पहुंचा तो फ्लाइट आ चुकी थी। मेरा दिल ही दिल में बेहद खुश था। घर का इंतजाम भी हो चुका था। बड़ी शिद्दत से मैं जरीना के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरी बेचैनी इस वक्त बढ़ने लगी जब तमाम मुसाफिर बाहर आ चुके थे, लेकिन जरीना नहीं आई थी। मुझे फिक्र सी होने लगी। मैं वहां के स्टाफ से कहलवाया भी कि मेरी बीवी अभी तक बाहर नहीं है। वो कहने लगे, इस फ्लाइट के सारे पैसेंजर बाहर आ चुके हैं। मैं बेहद परेशान हुआ था, वो कहाँ जा सकती थी। मैंने अपने मालिक को अपनी परेशानी बताई। वो भी एयरपोर्ट पहुंच गए। कहने लगे, मेरे एयरपोर्ट के अंदर ताल्लुकात हैं, मैं तुम्हारी बीवी के बारे में पूछ कर आता हूँ। वो एयरपोर्ट के अंदर हिस्से में चले गए। कुछ देर बाद वापस आए तो कहने लगे कि वो लड़की दुबई एयरपोर्ट तक साथ थी। इसके बाद वो फ्लाइट में नहीं बैठी, वहीं दुबई में उतर गई। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वो कैसे ये गलती कर सकती थी। हालांकि मैंने इसे फोन पर अच्छी तरह समझाया था कि वो कहीं ना जाए, जहां इसकी फ्लाइट के मुसाफिर बैठे वो वहीं बैठी रहे। फिर वो कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती थी। मेरा तो दिल यूं था कि सीना शिगाफ करके बाहर आ जाएगा। मैं वहीं पर रोने लगा। एक अनजान मुल्क में वो न जाने कहाँ चली गई है। मैं कैसे इसे ढूंढूंगा। मेरा मालिक बहुत ही भला इंसान था। वो मुझे अपने साथ दुबई ले गया। वहां जाकर इंफॉर्मेशन भी निकलवाई। वहां से पता चला कि एक जरीना नामी पैसेंजर दुबई के एयरपोर्ट से बाहर निकली थी। जिस टैक्सी में वो बैठी थी वो एक हादसे का शिकार हो गई। मुझे एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। जरीना क्यों दुबई में उतरी थी। जब मैंने इसे सख्ती से मना किया था। मैंने जिस लड़की को जले हुए हॉस्पिटल में देखा, इसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। हाथ पांव जले हुए थे। जो बैग इस टैक्सी से मिला था वो देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो जरीना का ही था। मैं अपनी बीवी की याद में हर वक्त रोता रहता था। इस वक्त मेरा वो मालिक ही मेरा बहुत बड़ा हमदर्द साबित हुआ था। कहने लगा, किस्मत में शायद यही लिखा था, तुम दिल बड़ा करो। तुम्हारी बीवी अनजान सी औरत थी, इसलिए बेअबरी में दुबई में ही उतर गई होगी और फिर हादसे का शिकार भी हो गई। मेरे लिए ये काम कोई छोटा नहीं था। जरीना कितनी खुश थी जब मैंने इसे ये बताया कि मैं इसे अपने पास बुला रहा हूँ। मेरे मालिक ने मेरे वो पैसे भी नहीं काटे जो जरीना की टिकट वीजे पर खर्च हुए थे। मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी। वो एक बहुत हमदर्द सा इंसान था। ये खबर जब मैंने पाकिस्तान में बताई तो मेरी वालदा मुझे ही कोसने लगी। कहने लगी, तुम्हें इसे अपने पास बुलाने का शौक था, देख क्या इसका अंजाम। बहुत वक्त लगा मुझे संभलने में, लेकिन मैंने खुद को काम में मसरूफ कर लिया था। 8 साल बीत चुके थे और आज वो मुझे नजर आई थी, लेकिन किसी की बीवी के रूप में। वो कैसे ऐसा कर सकती थी। मेरी बीवी होते हुए वो कैसे दूसरा निकाह कर सकती थी। मेरी परेशानी में मेरा मालिक ही मेरा असल हमदर्द साबित हुआ था। मैं फुटपाथ से उठकर सीधा अपने मालिक के पास पहुंचा था। मैंने जब इसे ये बात बताई तो मेरी बात सुनकर वो बदहवास सा हुआ था। मुझसे कहने लगा, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। वो लड़की तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है जबकि वो मर चुकी है। ये कहते हुए मेरे मालिक की जुबान इसका साथ नहीं दे रही थी। मैंने कहा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो मेरी बीवी ही है, मेरी जरीना है। मैं अपनी बीवी को पहचानने में गलती कर ही नहीं सकता। मेरे लिए ये बात बहुत अजियतनाक थी कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ इसकी बीवी बनकर कैसे रह सकती है। मेरा मालिक कहने लगा, वो कोई और लड़की होगी। तुमने खुद अपनी मुर्दा बीवी की पहचान की थी। मैंने कहा, इस लड़की का चेहरा जल चुका था जिसे मैंने देखा था। मैं कुछ नहीं जानता कि वो कौन थी, लेकिन मेरी बीवी जरीना इस अरबी के घर में है। आप बस मुझे ये बताएं, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं। मेरी बात पर वो सब का शिकार होने लगा। कहने लगा, मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ, ये रिस्की काम है, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। वो यूं घबरा रहे थे जैसे मैंने न जाने क्या कह दिया हो। मैं वहां से भी मायूस हो चुका था, लेकिन मैं कैसे अपनी बीवी को किसी गैर के घर पर बर्दाश्त कर सकता था। मेरी रातों की नींद उड़कर रह गई थी। मैं अगले रोज फिर इसी घर पर पहुंच गया। दरवाजा इस बार भी इसी अरबी ने खोला था। मुझे देखकर गुस्से से सुर खोलने लगा। मैंने कहा, देखो भाई, मेरी बात जो ठंडे दिमाग से सुनो। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा। तुम्हारी बीवी पहले मेरी बीवी रह चुकी है और वो अब भी मेरे निकाह में है, इसलिए निकाह पर निकाह जायज ही नहीं है। अगर इसने तुमसे कर भी लिया है तो मेरी मौजूदगी में तुम्हारा कायम नहीं रह सकता। तुम जिससे चाहे फतवा ले सकते हो। वो कहने लगा, अपने फतवे अपने पास रखो और आइंदा मेरे घर पर मत आना। मैं वहां से मायूस होकर वापस लौट गया। अब मेरे पास बस एक ही तरीका बचा था कि मैं बराह रास्त जरीना से बात करूं। मुझे यकीन था कि वो अब भी मुझसे मोहब्बत करती होगी। वो कहाँ चली गई और अब क्यों इसने मेरी बीवी होते हुए दूसरा निकाह किया था। वो हर बात से वाकिफ थी, फिर कैसे ये सब कर सकती थी। मैं इसी के आसपास छुप गया ताकि ये पता लगा सकूं
کہ وہ अरबी कब घर से बाहर निकलता है, लेकिन ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे जब मेरा मालिक इसके घर से बाहर निकल रहा था। वो इनके गेट पर खड़ा इस अरबी से बातचीत भी कर रहा था। जिस अंदाज से मेरा मालिक इस अरबी से बात कर रहा था, लग रहा था जैसे बहुत पुराने मरासम इन दोनों के बीच में रहे हूँ। मेरा जहन फिर से उलझने लगा। मेरा मालिक इस अरबी को जानता था। ये सब क्या था, मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे हर हाल में जरीना से मिलना था, तब मैं सच्चाई से वाकिफ हो सकता था। मैं रात तक वहीं छुपा रहा, लेकिन वो शख्स बाहर नहीं निकला। रात के 12 बजे जब सन्नाटा सा छा गया तो मैं चुपके से इनके घर की दीवार फलांग कर इस घर के अंदर तक पहुंच गया। मैंने एक खिड़की के अंदर लाइट चली हुई देखी तो मैं इसी खिड़की के करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने धीरे से खिड़की खोली तो वो खुल गई। जब मैंने अंदर देखा तो जरीना और वो बच्चा एक कोने में दबक कर बैठे हुए थे और वो शख्स कह रहा था कि मैंने तुम्हारी मुंह मांगी कीमत भरी है, इसलिए तुम कभी भी मुझसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारा ताल्लुक जायज है या नहीं, लेकिन तुम जहां से बाहर नहीं निकल सकती। जरीना इससे कहने लगी कि पिछले 7 साल से तुमने मुझे नाजायज अपने साथ रखा है। खुदा के लिए मुझे जाने दो। अब ये हर वक्त की गुनाह की अजियत मुझसे सही नहीं जाती। मेरा शोहर बहुत शरीफ इंसान है, मैं इसकी बीवी हूँ, इसकी इज्जत हूँ, जिसे तुम पिछले 7 सालों से पमाल कर रहे हो, लेकिन अब मुझे जाने दो। मेरी बीवी जरीना रो रो कर इस शख्स की मिन्नत समाजत कर रही थी। वो शख्स बेहिसी से कमरे से बाहर निकल गया। यही मौका था जरीना से बात करने का। मैंने जल्दी से खिड़की खोली और इसके अंदर दाखिल हो गया। जब जरीना ने मुझे देखा तो तेज कदम उठाती हुई मेरे पास आई थी, मेरे साथ लग गई, कहने लगी, फाइक मुझे बचा लो, ये लोग मुझे नाजायज अपने साथ बांधे हैं। मैंने कहा, तुम इस मुसीबत में फंस कैसे गई? कहने लगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी फ्लाइट दुबई में नहीं उतरी थी, सीधी यहीं आई थी, लेकिन इसका वक्त अलग था। मुझे यही मालूम था कि आप मुझे लेने आएंगे, इसलिए जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली तो सामने एक अधेड़ उम्र शख्स ने मुझे इशारा किया और फिर मेरे पास आ गया। मुझसे कहने लगा, मुझे फाइक ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए। मुझे लगा आपने ही भेजा होगा, क्योंकि वो नाम आपका ही ले रहा था। लेकिन जैसे ही मैं इस गाड़ी में बैठी, इस गाड़ी में ऐसी तेज खुशबू थी, बैठते ही बेहोश हो गई। और जब होश आई तो वो शख्स मेरे पास मौजूद था और मैं एक कमरे में थी। मैं उठ बैठी। मैंने पूछा कि फाइक कहाँ है, तो वो हंसने लगा, कहने लगा, वो तो जानता ही नहीं है कि तुम यहाँ आ चुकी हो। तुम्हें मैंने फाइक के लिए नहीं, अपने लिए बुलाया है। मैंने तुम्हारी तस्वीर फाइक के पास देखी थी, तुम्हारा हुस्न देखकर तुम्हें पागल सा हो गया था, इसलिए मैंने सारा प्लान बनाया है। तुम्हारा शोहर तुम्हें मुर्दा समझ चुका है, इसलिए अब तुम मेरी गुलाम बनकर रहोगी। इस शख्स ने पहले खुद मेरी इज्जत को पमाल किया और फिर इस अरबी के हाथ मुझे फरोख्त कर दिया। ये शख्स मुझे जबरदस्ती अपने साथ बांधे हुए है। मैंने कहा, और ये बच्चा कौन है? मेरी बात पर वो रोने लगी, कहने लगी, ये आपका है, क्योंकि यहाँ आने से पहले ही मुझे ये खबर मिली थी कि मैं उम्मीद से हूँ। मैंने सोचा आपको ये खबर यहाँ आकर सुनाऊंगी, लेकिन यहाँ आकर मैं इस मुसीबत में फंस गई। मैं वहां से वापस लौट आया और अगले रोज पुलिस को वहां ले गया। पुलिस ने जरीना का बयान लिया और मेरे मालिक और इस अरबी को गिरफ्तार कर लिया। मेरी बीवी मुझे वापस मिल चुकी थी। मैं नहीं जानता था जिस मालिक को मैं अपना हमदर्द समझता था वही मेरी पीठ पर छुरा कोप देगा। काश कि मैं पाकिस्तान में ही काम करता तो मेरी बीवी वो अजियत ना सहती जो इसे सहनी पड़ी।